चलो आज today we'll see the two caches. Which is the first cache? First level cache is the session cache. So every session has its own inbuilt memory. If the object is there in that memory, it will not query the database. But if the object is not, so if I have multiple cache, app for cache, ठीक है caching कर लेते हैं. So now tell me how many sessions do I have? Hmm? Change करने? Tell me how many sessions am I having? Hmm? Session 1 factory से session 2 factory. Correct? So this session has its own cache. So we'll call it as level 1 cache. Level 1 cache is what? Which level? Session level. So if I fetch an object into this session, will it query the database now? Yes, no, maybe. Yes, session has just started. There's nothing in the session. It's a blank session. So is the object one there in the cache? Not there. So will the query be displayed? Yes, no, maybe. Query will be displayed. Right? And sys out the employee one. So it will also display me the toString for that employee one. Correct? Subsequently, when I ask the same thing, will the query be displayed? Yes, no, maybe. Yes, no, maybe. No. So how many times will the query be displayed for this? Only one. And how many times will the object be displayed? Two times. How many times will the object be displayed? इसमें इसको देखो कोई ऐड हुआ है क्या? How many times will the object be displayed? And query? ठीक है. Query one, object twice. सही है? Okay. Now this object is in the cache of which session? Session 1, right? But how many sessions am I having now? Now if session 2 says the same, that please give me employee 1. Who is saying it? Will the query be displayed or no? Will the query be displayed or not? Yes, no, maybe. बोलो भाई. Why yes, sir? Because why yes? Because that object is not there in that session. Because that object is not there in that session. Correct? So object will be displayed. Query will be displayed, right? So now again when I rerun the application,
both session, this is a new session because every run it is forming a new session, right? This time query displayed, yes or no? Query yes. Here no. Here, so how many times will the query be displayed? 2 times. Why 2 times when the same object is being fetched? Because there are 2 sessions and each session has its own memory. So that session is having its memory. So this object is in this session's memory only. When I make a new session, then that has its different memory. Okay. So let's and if the query is displayed 2 times, means problem has been understood. सही है? Select and select. Correct? Then what we can have is, so it's like, Mongenes. Have you heard of Mongenes or Theobroma? Have you heard of Theobroma? What do they sell? Cake, right? तो उनके अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है क्या नहीं? नियरेस्ट ब्रांच किधर है थियोब्रह्मा का? देखा है? किधर है? ये खिड़की के बाहर देखो। तुम लोग कहाँ रह रहे हैं? अब ये कितने सेशन हो गए? तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने फेच किया वो कहाँ है? सिर्फ सेशन 1 में था। सेकेंड टाइम जब किया तो वहां से रिटर्न कर दिया। अब मैंने एक नया सेशन बनाया सेशन 2, जब उसमें फेच किया तो नहीं था, तो वापस फिर क्वेरी करके उसको भी लाना पड़ा। यस, नो, मे बी, ऐसा कुछ खेल चल रहा है। उसने भी फिर डेटाबेस से क्वेरी करके लेके आया, राइट? ओके। तो अब मैं जाता हूं एक मॉन्जिनीज के ब्रांच में, एफसी रोड ब्रांच, और बोलता हूं कि आई नीड 10 केक, 10 ब्लैक फॉरेस्ट केक आई नीड। तो वे विल ही सर्च इन हिज इन्वेंट्री। उनका एक लैपटॉप होता है रिसेप्शन पे, वो जाकर लैपटॉप पे चेक करेगा कि आज के स्टॉक में 10 ब्लैक फॉरेस्ट है क्या। वो बोलेगा सर सिर्फ 7 है मेरे पास। तो बोलूँगा नहीं, मुझे 10 ही चाहिए वरना नहीं चाहिए। तो मुझे हर एम्प्लॉय को एक देना है। इसका आवाज आ रहा है, म्यूट करने बोल। मुझे हर एम्प्लॉय का एक देना है। तो 7 को दिया, 3 को दिया, तो वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। आइदर एवरीवन और 0। तो वो पूछेगा सर आपको कब तक देना है? बोला मुझे देना है 11 बजे। बोले सर अभी 1.5 घंटा है। रुको मैं अपने नियरेस्ट ब्रांच को फोन करके पूछता हूँ। तो एक ब्रांच उसको मिलेगा जेएम रोड पे। वो पूछेगा डू यू हैव 3 केक? उनका आपस में नेटवर्क रहेगा ना, तो बोलेगा हाँ है, तो बोले इसमें को डिलीवर कर दे, यहाँ 10 की ऑर्डर आया है। तो अब अगर वो इस लैपटॉप में ही सर्च करे, अगर इसके लैपटॉप में जिसमें इंटरनेट नहीं है, सिर्फ उसका लैपटॉप है, तो वो सिर्फ उसके ब्रांच का डेटा देगा। फिर वो इंटरनेट पे कनेक्ट करके मॉन्जिनीज के सर्वर पे लॉगिन करता है। तो फिर जितने मॉन्जिनीज के आउटलेट है सबका डेटा मिल जाएगा उसको कि किसके पास 3 केक मिल रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो ऑरेंज है, मैंने जब लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था, अभी वो है क्या नहीं है शायद ये है डायग्राम है। तो ये ग्रीन क्या है और ऑरेंज क्या है? तो सेकंड लेवल कैशे होता है फैक्ट्री लेवल कैशे, यानी उस फैक्ट्री से जितने सेशन बने हैं उन सब में चेक करके वो ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, और कहीं भी मिल जाए तो डेटाबेस को क्वेरी मत कर। तो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री, दैट इज लेवल 2 कैशे। तो लेवल 2 कैशे को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैंने नोट्स में दिया है, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट सेकेंड लेवल कैशे। स्टेप 1, ऐड द 2 डिपेंडेंसीज। तो अभी हम लोग मैवन यूज कर रहे हैं। मैवन में जो भी काम करना हो क्या करो, उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो ये EH कैशे है और एक तुम्हारा हाइबरनेट EH कैशे है। तो इन दोनों को लो, वर्जन वही रखो जो आपका हाइबरनेट का वर्जन, कोर का वर्जन था। यहाँ लिखा है मैंने, नोट यूज द सेम वर्जन एज द हाइबरनेट कोर। तो इन 2 डिपेंडेंसीज को कहाँ ऐड करेंगे हम लोग? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में। कहाँ ऐड करेंगे? मेन क्लास में। कहाँ ऐड करेंगे? नहीं, com.xml में। डिपेंडेंसी सारे कहाँ थे?
डिपेंडेंसी सारे कहाँ जाते हैं, pom.xml, pom.xml मिलेगा आपको, लास्ट फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट इज pom.xml। इसको किया, एक्सपांड किया, सबसे लास्ट में जो फाइल मिलेगा वो क्या है उसको ओपन करो, और अभी मैं कहाँ पेस्ट करूँ, लाइन नंबर 40 के बाहर या 40 के अंदर, ठीक है, जहां मर्जी आपको पेस्ट करना है पेस्ट करो, 40 के अंदर पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट F कर दो, हो गया फॉर्मेट। कमेंट्स इसमें ऐसे नहीं होते तो निकाल दो वरना ये गड़बड़ करेगा। कोई बाबा का इंसान है, ओके ये निकाल दिया ऐसे, और ये डिपेंडेंसी क्लोज हो गई, कंट्रोल शिफ्ट F फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। वर्जन को ऊपर ले लेते हैं, ओके मेक सेंस। सेव, so as I click on save a progress bar will move, तो क्या कर रहा है ये, डिपेंडेंसी इसको डाउनलोड कर रहा है, ये भी सेम अपने कैशे वाला लॉजिक अप्लाई करता है। अगर वो जार फाइल आपके हार्ड डिस्क पे नहीं है तो क्या करता है, डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से, और अगर हार्ड डिस्क पे है तो वहां से रिटर्न कर देगा। हार्ड डिस्क में मालूम कहाँ स्टोर करता है वो, हार्ड डिस्क पे वो मालूम कहाँ स्टोर करता है, देखो ये जो मैवन डिपेंडेंसी है ना, देखो कहाँ से ला रहा है वो, दिख रहा है, माई द रिफर्बिश्ड लैपटॉप, तो दिस ओल्ड यूजर नेम सिंह, तो कहाँ से ला रहा है देखो बताओ, कौन किसका फोटोग्राफिक मेमोरी है, याद कर लो लोकेशन और मुझे प्रॉम्प्ट करो फिर, ठीक है। M2 याद रखो बस, M2 क्या नाम है, M2 फोल्डर। चलो अब मुझे गाइड करो, आप कहाँ जाओ, सी बोलो, यूजर, आपके यूजर का नाम, उसमें M2 में कहाँ था, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी में ORG रहेगा शायद, ORG है क्या देखो, हाँ रिपोजिटरी में देखो सब अलग अलग है, जे यूनिट के अलग है, सबके अपने अपनी जगह पे है। जो मैंने अभी ऐड किया है कैशे का, ये कैशे किधर है, नंबर बोलो, ये थर्ड लास्ट, तो कहाँ पर है, M2 रिपोजिटरी में, नेट में, किसमें, नेट में है। तो ये सब देखो, ये सब डाउनलोडेड मेरे पास रिपोजिटरी जार्स है। नेट में किधर है, नेट में है SF और ई कैश और ई कैश, SF और ई कैश और ई कैश, और उसके अंदर कौन सा वर्जन है अपना, अब देखो कैश का कौन सा वर्जन है हमारे कैश का, 2.10.3, कितना, 2.10.3, तो ये वाला है, और उसकी जार फाइल यहाँ पर रहेगी, दिख रहा है, राइट क्लिक करो, ग्रुप बाय टाइप करो, ग्रुप बाय टाइप, तो सारे जार्स अलग हो जाएंगे, दिख रहे जार, तो ये उस जगह पे आ गए। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा ये डिपेंडेंसी ऐड, तो क्या करेगा वो, यहाँ से ला के देगा। तो मैंने कब ऐड की थी देखो, ये 18/7/2024, एक साल पहले मैंने ये डिपेंडेंसी डाउनलोड की थी, उसने वहां से फेच कर दिया, इसलिए मेरा फास्ट हो गया, और अगर मेरा इंटरनेट नहीं भी होता तब भी मेरा काम चल जाता। और तुम लोग अगर यूज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम भर के लिए इंटरनेट यूज करके वो डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ रख देगा इधर M2 फोल्डर में, किसमें, तो अगर इंटरव्यूअर पूछे जो रिपोजिटरीज डाउनलोड होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो क्या बोलने का, M2 फोल्डर में, फर्स्ट टाइम इट डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट from the path we have mentioned in the dependency, and then it keeps it in the M2 folder, and it makes a sub folder for each of the dependency category. Next time subsequently it will fetch it from the M2 folder, no need to go to the download. This is same like, so your M2 folder is working like a cache, working like a cache, तो जो frequently used files है वो वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया, अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट में, कॉलेज में हम सिर्फ कोड लिखते थे, हैश इंक्लूड से शुरू कर देते थे, देयर वाज नो कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर भी करनी पड़ती है, ये जार फाइल को ऐड करो, ये डेटाबेस का यूजर नेम फेच करो, ये URL बनाओ, ये डेटाबेस को बनाओ, तो at times the code is correct but the configuration is causing problems, okay, so you have to be very particular with the configuration. So I'm giving step by step. Second, now in the Hibernate also enable the second level cache. What am I saying, Hibernate cache use second level cache property set कर दो, ठीक है। एक तो ये करना है, ये क्या करना है जाके भाई, क्या मिलेगी वो, SRC मेन जावा ना,
इधर, और कहाँ डाल दो उसको, प्रॉपर्टी के अंदर। तो अभी आप प्रॉपर्टीज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट ईच प्रॉपर्टी इज डूइंग, राइट? आई एक्सप्लेन ऑल एवरीथिंग, व्हाट इज द अपडेट डूइंग, व्हाट इज शो एसक्यूएल, व्हाट इज फॉर्मेट। ओके, सेकंड थिंग, एक और चीज समझना है, एक और हमको लगाना है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी देखो, इसका नाम है हाइबरनेट कैशे रीजन फैक्ट्री क्लास, और ये वो क्लास है, क्या नाम है उसका? अब वो कौन से पैकेज में है? ओ आर जी हाइबरनेट कैशे ई एच कैशे इंटरनल इधर। तो अभी इसका लोकेशन चेक करो कि ये उधर है क्या, ठीक है, ये मैंने बताया। देखो, नोट check for the cache package in the Maven dependencies for the absolute path of the EH cache region factory। ये एक क्लास है, कौन सी क्लास है? नाम देखो मैंने क्या दिया है, क्या नाम दिया है मैंने? तो अब ये जो क्लास है ये कौन से पाथ में है उसका नाम प्रॉपर लेना चाहिए आपने। तो वो कहाँ चेक करना है आपने? क्रॉस चेक करना। ये है मेरे मशीन का ये पाथ है, आपकी मशीन पे अलग हो। मैवन डिपेंडेंसीज में गए, कहाँ है? ये कैश आ गया इधर, इसको एक्सपांड किया, उसको एक्सपांड करके देखो मेरे इसमें क्या दिखा रहा है वो, मेरे इसमें दिखा रहा है वो कि है वो ओ आर जी हाइबरनेट कैशे, कहाँ पर दिखा रहा है वो? दिख रहा है हाइबरनेट ई एच कैसे दिख रहा है? वहाँ गए तो क्या दिखा रहा है? ओ आर जी हाइबरनेट कैशे ई कैशे, ये वाले में ना, इंटरनल दूसरे वाले में, मेरे में यहाँ पर है। कौन सी फाइल है वो? ई एच कैशे रीजन फैक्ट्री ही मिली क्या? ई एच कैशे, तो यहाँ पर मुझे मिली, ठीक है। तो आपके इसमें किधर है? इसका कभी इसमें भी हो सकती है, तो इस पर राइट क्लिक करने का और कॉपी क्वालिफाइड नेम करने का, और वो ला के यहाँ पेस्ट कर देने का। तो जब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये उसका क्वालिफाइड नेम है, दिख रहा है? सेम टू सेम है क्या नहीं? तो आपको कुछ सिर्फ इतना ध्यान देना है बस, ये मुझे क्लास कहाँ मिल रही है। डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री पे आके रोक दिया है, डॉट क्लास वो दिख के दे रहा है अपने को, वो निकाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई शक? सेकंड भी हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब थर्ड, एनोटेशंस ऐड करने हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैश करना है फैक्ट्री में सेकंड लेवल पे कि नहीं करना है? बाय डिफॉल्ट सेशन में तो हर का कैश होता ही है। सेकंड लेवल पे ये क्लास का ऑब्जेक्ट कैश करना है कि नहीं करना है? कुछ क्लासेस के ऑब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, तो मुझे उनको कैश नहीं करना है फैक्ट्री लेवल पे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको कैश करना है फैक्ट्री लेवल पे। अभी जो हम करने वाले हैं एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, उसका ऑब्जेक्ट आपको फैक्ट्री लेवल सेकंड लेवल कैशे में कैश करना है कि नहीं करना है? करना है। तो उस क्लास को जाके कैशेबल कैशे लिख दो। क्या लिख दो? ठीक है। तो फिर वो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, वरना उसको वो ध्यान देगा नहीं। समझ में आ रही है बात? तीन तीन जो मैंने सेटिंग्स की, तो कहाँ है? एंटिटी में, राइट? एंटिटी तो ऑलरेडी दिया है इसको, और क्या क्या एनोटेशन देना है अभी? और एनोटेशन का कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एनोटेशन का ऑर्डर नहीं होता। कंट्रोल शिफ्ट ओ करके सारे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिए, सेव कर लिया, ऑल गुड। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ओके जाओ, ठीक है। अब जाके ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, ये एचक्यूएल है। हाइबरनेट की भी अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज है, तो क्या बोलते हैं? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, वो अलग ही एक है, उसको छोड़ दो। तो अपना काम हो गया अभी। चलो अभी देखते हैं होता है क्या। अब यही काम रन करके, अब यही चीज जो मैंने रन की थी लास्ट टाइम, तो 2 बार क्वेरी आई थी। कितने बार क्वेरी आई थी? अब मैंने कैशे इंप्लीमेंट कर दिया है सेकंड लेवल का, तो अगर 1 में भी होगा तो 2 वाला भी एक्सेस कर लेगा, उसको क्वेरी नहीं करेगा। तो अब क्वेरी कितने बार आना चाहिए? एक ही बार, सेम कोड रन करने पर, राइट? सेम कोड। कितने हमारे पास सेशंस है? तो है, तो अभी क्वेरी कितने बार आएंगे अभी? हाँ, एक बार। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अभी सेकेंड लेवल कैशे में मिलेगा, ठीक है। सेव इट, राइट क्लिक, run, and everything goes well as per expectation. You should see the query only once. How was that?
yes, no, maybe. अरे तुम लोग के